Okay, let us start today with the new chapter, electromagnetic induction and alternating currents. In this chapter, you will be studying one very important law called as Faraday's laws of electromagnetic induction. And you will be surprised that throughout this world, the electricity that we are using, you generate it by using principle of Faraday. It started with a very, very small, very simple experiment that we will be discussing in our chapter also. But before we learn about what is Faraday's law and how to understand Faraday's law, we need to know the concept of, first of all, magnetic flux. So let us learn first of all, what is magnetic flux. So you already are familiar with the term electric flux. In an electric field region, when you imagine one small area, suppose, then how many electric lines of forces were passing through that surface? You called it as electric flux. In the same manner, almost same way of defining, here we have, suppose, a magnetic field. The magnetic lines of forces are also similarly shown like electric lines of forces. In that magnetic field, imagine a surface, then the number of magnetic lines of forces penetrating through that surface, passing through that surface, is called as magnetic flux. So it is simply defined in that same way. It is the number of magnetic lines of forces passing through any surface in a magnetic field region. But now you see, your magnetic field region can be of two types. It may be a uniform magnetic field region, it may be a non-uniform magnetic field region. So let us take up a situation first of all. Suppose there is a uniform magnetic field region. Uniform magnetic fields are shown with parallel and equally spaced magnetic lines of forces, as I have shown here. These are some magnetic lines of forces. Suppose they are parallel and they are equally spaced. And in this region, imagine one surface. I have shown some surface. Maybe it is looking like an oval surface, or maybe sometimes you are feeling it is a circular face. Imagine any shape, that doesn't matter. It's a surface. And let us for time being assume it is a flat surface, a plane surface, okay? A plane surface, as I have shown, it is put in this magnetic field somewhat inclined like this in this magnetic field with the direction of magnetic field vector. And as you already know that surfaces, whenever we choose surfaces, we mark its area we have already defined a vector quantity. So suppose this surface on which I have drawn a perpendicular and I call it as an area vector, that area vector is suppose inclined to the direction of magnetic field with an angle of theta. Means there are several orientations possible. It may be placed perpendicular to the field, it may be placed parallel to the field. I have shown it is kept somewhat inclined with the field. Now through that through that surface, some of the lines can you see are passing through, as I have shown some broken magnetic lines of forces, because they are coming in from one side and they are coming out from the other side of that surface. And there are some lines which I have shown are not passing through that surface. So how many lines of forces are passing through that surface? Okay, that is called as the magnetic flux. Now how many lines will pass will depend upon what factors? First of all, it will depend upon how large is the surface. Second, it will depend upon how closely packed are these lines of forces. When I talk about this density of magnetic lines of forces, they are closely packed or rarely packed. That means the intensity of magnetic field. Stronger the field, closer the lines of forces. Weaker the field, rarer are the lines of forces. So if the field is weak, only few lines will be passing through that same surface. But if the field is dense, field is strong and magnetic lines are closely packed, through that same surface maybe more lines. Means suppose if I draw one more line in between all these parallel lines, the number of lines passing through this surface will be more. So that means the factors on which it depends is how large is that area, how strong is that field. But one more factor is how is this surface kept in that magnetic field. What is the orientation of this magnetic field? Can you understand? Like I have shown here in this figure, if the surface was placed like this, that is perpendicular to the field, maximum lines will pass through. But if that same surface is now rotated and kept parallel to the field, no lines will be passing through that field. So the orientation also matters. And how these three factors decide what is the total flux. So mathematically we define it like this, that magnetic flux is the dot product of, or it's a scalar product of magnetic field vector and area vector. B dot A, or mathematically we can write a scalar product as BA cos theta. So theta is the angle between B vector and A vector.
then cos of that angle should be chosen. Then magnetic flux is B dot A. That shows flux is a scalar quantity, isn't it? So I have taken a situation like if the angle theta was 0, if the theta is 0 means, see that is again important. Theta is 0 means not that surface is kept parallel to the field. Theta is 0 when the surface is actually perpendicular to the field. Area vector and field vector are in same direction. That is when theta is 0. So surface is perpendicular. In that case, you can see when theta is 0, cos 0 is 1. So flux will be maximum. Whereas if theta is 90, that means area vector is perpendicular to the magnetic field vector. This is your magnetic field vector. And in this situation, the surface is actually parallel to the field lines. So theta is 90. Angle between area vector and field vector is 90. So the flux will be BA cos 90 means 0. We will be taking up a situation when theta is suppose more than 90. How can it be more than 90? That we will understand when we'll be talking about closed surfaces. When theta is more than 90, then flux will be negative. Okay. We'll then take up like inward flux and outward flux like you have taken up in Gauss theorem. जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉस थ्योरम पढ़ते थे तो क्लोज सर्फेसेस की जब डिस्कशंस होती थी तो उसमें बात आती थी कि देयर कैन बी इनवर्ड फ्लक्सेस एंड आउटवर्ड फ्लक्सेस. सो वन फ्लक्स इज कॉल्ड एज positive flux, another flux was called as negative flux, right? And let me just ask you, what is the unit now? Unit of flux क्या होना चाहिए? Since you said it is BA cos theta, the unit of flux SI unit should be B is measured in Tesla, A is area, so area is meter square. Tesla into meter square. This is in short called as Weber. So this is a new term now, new unit for you. 1 Weber. Okay, symbol for it is WB. Is 1 Tesla into 1 meter square. 1 Tesla into 1 meter square. Now with this definition of magnetic flux, sometimes you can also define magnetic field intensity. See, this is the third way of defining magnetic field intensity. First way of defining magnetic field was by using magnetic Lorentz force F is equals to QV cross B. Then in the chapter of magnetism, we learned it is the force per unit pole strength. Now we are defining it in yet another way, defining B vector using flux. So if I have phi is equals to BA cos theta, in this if I put up A is 1, okay, cos theta is also 1 means theta is 0. So what is B? B is phi. Phi is equals to B. So you may define magnetic field क्या है? Magnetic field intensity की ये जो मैंने magnetic field region दिखाया, हाँ, जिसको मैं कह रहा था कि magnetic field is B everywhere, जैसे uniform magnetic field B. So what is the meaning of magnetic field B in terms of magnetic flux? क्या बोलेंगे देखिए, it is the magnetic flux linked per unit area through a surface placed perpendicular to the direction of B vector. कि अगर एक ऐसा सरफेस है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, दिस सिचुएशन, ठीक है, मे बी एनी एरिया ऐसा रखा हुआ है, तो थीटा इज 0, इन दिस केस थीटा इज 0, तो इसमें से कुछ फ्लक्स था, फ्लक्स कितना था इसमें से, फ्लक्स वाज B इंटू ए. तो अगर ए सरफेस के थ्रू फ्लक्स B इंटू ए है तो इसके यूनिट एरिया से फ्लक्स कितना है, B will be equals to 5 upon A. So per unit area जितना फ्लक्स लिंक्ड है, that is called as the magnetic field intensity, है ना. So sometimes 1 Tesla is expressed in terms of units of flux. You may find out several problems sometimes that magnetic field is written as Tesla, but instead of Tesla sometimes it may be written as Weber per meter square. When 1 Weber is 1 Tesla into 1 meter square, means 1 Tesla will be 1 Weber upon 1 meter square. So 1 Weber per meter square is 1 Tesla. So that is how we define magnetic field intensity in terms of magnetic flux. Let's talk about now once again magnetic flux in a non-uniform field.
Now if it is a non-uniform field, see I have shown a non-uniform field. कैसे ये non-uniform क्यों है? देखिए, magnetic lines are not parallel, they are not equally spaced also. Can you see here I have shown the lines are denser, and as I proceed forward in the direction of wheel, the lines are getting rarefied. That means the magnetic field's directions are changing, even magnetic field's magnitudes are changing. And in such a field we have drawn again a similar surface. वही एक surface draw किया, suppose ये surface S है. But now how to find out the flux through it? कि मैं अगर इस surface का एरिया S जानता भी हूं या एरिया A जानता भी हूं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लूं? क्योंकि यहां की मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शंस भी अलग अलग है. तो मैं जब B डॉट एरिया करूंगा तो कौन सा एंगल चूज करूं, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड चूज करूं? सो इसलिए हम जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इमेजिन दैट सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री एरियाज लाइक दिस. आई हैव शोन वन स्मॉल एलिमेंट्री एरिया DA. ऐसे बहुत सारे एरियाज इमेजिन करिए, एंड इट इज सच ए स्मॉल एरिया कि उस छोटे से एरिया में हम ये मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है. ठीक है, उतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. इट इज सो स्मॉल कि बहुत छोटे से रीजन में, बहुत छोटे से डिस्टेंस में अगर आप वेलोसिटी का चेंज देखते थे तो आप मान लेते थे नेग्लिजिबल है. एक बहुत छोटे से चेंज इन वेलोसिटी या छोटे से डिस्प्लेसमेंट में आप एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट मान लेते. मतलब वेरी स्मॉल चेंजेस में हम चीजों को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, है ना. दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B है. उस पॉइंट के आसपास एक इतना छोटा एरिया इमेजिन कर रहे हैं कि उस एरिया में अगर हम अलग अलग पॉइंट्स चूज कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम कि उस पॉइंट के उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट है. तो उस पॉइंट पर जो एरिया DA वेक्टर बनाया मैंने और उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B बनाया, सपोज उनके बीच में कोई एक एंगल थीटा है, तो उस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स पहले निकालें. तो वो फ्लक्स लिखा हमने D phi. D phi stands for small flux because the area is very small. तो देखिए B is not small, only area is small. तो फ्लक्स कितना हो गया स्मॉल एरिया से? B dot DA, B into DA cos theta, whatever theta is. तो we must know that B is some function of that surface area. B का उस surface area के साथ क्या रिलेशनशिप है, या उस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके उस कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हमें B का फंक्शन अवेलेबल है अगर, देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज द इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ ऑल दोस D phi. पूरे सरफेस पर उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ D phi मींस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट A. तो B डॉट DA, इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? B कैन बी सम फंक्शन ऑफ सम कोऑर्डिनेट्स, सम XYZ कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन हो सकते हैं. थीटा कैन बी वेरिएबल. तो वो फंक्शंस क्या अवेलेबल हैं? जब हमारे पास वो फंक्शंस अवेलेबल होंगे तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. वी कैन कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स. ठीक है, so this is just a conceptual idea being given to you. We can solve it only when you have the functions available. Now let us also talk about if the surface here I have shown is a closed surface. Maybe it is a sphere, maybe it is a cube or a cylinder or some other shape. If it is a closed surface, then the total flux will be again calculated in the same manner you did it like right now. Means it will be integrated over the entire surface. But integration is done over a closed surface. The sign of integration, can you see a difference in the sign of integration? This shows integration over a open surface. This sign of integration shows it is a surface which is a closed type of surface. Now, for that particular surface, we have a theorem again, like you had a theorem of Gauss theorem of electrostatics. Here we similarly have a Gauss theorem of magnetism. And if you remember, let me just recall it. Integration E dot dA in integration Gauss theorem of electrostatics you studied was equals to 1 upon epsilon naught times what? The total charge enclosed. ये था E dot dA is equals to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed. तो integration B dot dA it's equal to what? क्या होना चाहिए? Guess it. क्या होना चाहिए इसके लिए? तो नहीं गेस कर पाए? It is equal to 0 actually. It is equal to 0. Now the answer question is why it is 0. Tell me why it is 0. देखिए, मान लीजिए वो एक मैग्नेटिक डाइपोल, एंड वी नो, हमने मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि मैग्नेट्स नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोल्स. वो होंगे तो हमेशा डाइपोल्स होंगे, मतलब उसमें नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा. एंड यू ऑल्सो नो मैग्नेटिक लाइन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. दे नेवर
आर इन लाइक स्ट्रेट लाइंस या कंटिन्यूअस लाइंस ऐसे नहीं होगी वो, दे फॉर्म लूप्स. इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म लूप. डू यू रिमेंबर? सो मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. सो इफ यू कंसिडर एनी सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस इमेजिन करें, देखिए लाइन अगर यहां से इन हुई है तो वो लाइन कहीं से आउट भी होगी. लाइन यहां से आउट गई है देखिए तो साउथ पोल से वो इन भी होगी. तो इट इज ऑलवेज एसेंशियल. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अगर आपको याद हो कि वी सेड कि दैट इफ ए enclosure is a closed surface is enclosing a dipole inside it, the total electric flux was also zero. Similarly, here whenever you have a magnetic dipole or a current carrying loop which acts like a magnetic dipole, the magnetic lines will always, since magnetic lines form closed loops, so magnetic lines whenever it's a closed surface, whenever placed in a electromagnetic flux, lines has to go out. Then since they form a loop, they have to come in also, they have to come back also to the same point. So in case of magnetism, the Gauss theorem says that the total magnetic flux through any closed surface in a magnetic field is always zero. So you can quote two reasons here. First reason you can mention is because in magnetism monopoles do not exist, it is always dipoles. And second reason you can say is that in magnetism, magnetic lines are always in the form of closed loops. So whenever we have a closed surface inside a magnetic field, because of those closed loops, if magnetic lines go out of the surface, they have to come back into the surface also. So the net flux through any closed surface in a magnetic field will be always zero. I suppose it is clear. So this was the idea of magnetic flux. So we discussed it to understand actually the concept of Faraday's law. So now next topic is, now the main chapter begins. What is that Faraday's law, which tells you about the principle of electromagnetic induction. Now this concept of electromagnetic induction was first given by Faraday. बट एक सवाल है कि फैराडे के दिमाग में ऐसा क्या आया था, क्या सोचने लगे कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. ये एक्सपेरिमेंट सोचा ही क्यों उन्होंने, पहली बात तो क्यों आई दिमाग में उनकी. यू रिमेंबर लास्ट चैप्टर में, चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. क्या था वो कि दैट इफ यू हैड ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड था और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक वायर रखा था, मे बी वो वायर मान लीजिए सस्पेंडेड था कहीं से, एंड देन उस वायर में से आप एक करंट पास कर देते हैं, ठीक है, एक करंट पास कर देते हैं, तो दैट पीस ऑफ वायर विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस्ड फोर्स. क्या था वो फोर्स? यू रिमेंबर, F was equals to I dl क्रॉस या I L क्रॉस B, I L B sin थीटा, है ना, ये फोर्स लगता था. एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप उसका फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते थे. जैसे मान लीजिए ये फील्ड का डायरेक्शन था, बी वेक्टर ये है, हाँ, तो बी वेक्टर, करंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, फील्ड, करंट, फोर्स. तो अगर ये वायर ऐसे सस्पेंडेड है, दिस वायर विल बी मूविंग इन, उस पर एक फोर्स लगता था, वो मूव इन करता था. तो जब हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, करंट कैरिंग वायर मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी आर पासिंग इन करंट मींस वी आर स्पेंडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड जब हमने उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखकर, दिस वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दैट इज इट मूव्स मींस इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी. सो वी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, with the help of a magnetic field, right? Faraday was thinking it exactly in a reverse manner. He was thinking, can I convert back that kinetic energy into electrical energy? That means if I keep a wire in a magnetic field and we provide a kinetic energy, suppose it is being moved, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखकर हम मूव करें, हम काइनेटिक एनर्जी उसको दें, उसको, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्या ये वायर को अगर मैं कनेक्ट कर दूं किसी डिवाइस से तो उसमें से करंट फ्लो होगा? He was trying to do the reverse experiment, right? So one such arrangement he made in order to study this experiment. He did it like this. He took a solenoid, suppose a coil, a good conducting coil, a copper coil maybe, and he connected it to a galvanometer. Can you see? इसमें कोई source of electrical energy नहीं है, कोई बैटरी, कोई सेल, कुछ नहीं कनेक्टेड है, सिर्फ एक कॉइल है, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया. What is a galvanometer? Galvanometer is a device which detects current.
कि अगर मैंने इसको इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है ए और बी, तो ए और बी के बीच गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब कोई ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो हो। एक ए हायर पोटेंशियल है, बी लोअर है, तो करंट इधर फ्लो करेगा, बी हायर है, ए लोअर है, तो करंट इधर फ्लो करेगा। एक तरफ डिफ्लेक्शन होगा, इधर आएगा तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, तो करंट फ्लो करने से ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो सकता था। ना इसके अलावा उनके पैरेटस में, उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक मैग्नेट था। सपोज उन्होंने एक मैग्नेट लिया, सपोज उसका नॉर्थ पोल जैसा मैंने दिखाया अभी ऐसा लेके रखा हुआ है। नॉर्थ पोल इज पुट इन फ्रंट ऑफ दिस सोलेनॉइड एंड व्हाट ही वाज ट्राइंग इज कि सपोज सोलेनॉइड को यहां रखकर वो मैग्नेट को लाए, पास लेकर आए, या फिर उन्होंने अगली बार ये भी किया कि मैग्नेट को यहां रखा, कॉइल को उसके पास लेकर आए। ही वॉज थिंकिंग कि जब मैं इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाऊंगा, मतलब मैग्नेट को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करूंगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी इस कॉइल में प्रेजेंट गैल्वेनोमीटर में करंट जनरेट करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या मैं इस कॉइल को अगर मूव करूंगा तो कॉइल की काइनेटिक एनर्जी एक मैग्नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा। ऐसा वो सोच रहे थे। तो द क्वेश्चन इज कि वाज ही सक्सेसफुल, क्या ऐसा हुआ? ऐसा करने के बाद उनको रिजल्ट क्या मिला? ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है कुछ बुक्स में कि ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट एंड कैन यू अंडरस्टैंड। ये गैल्वेनोमीटर मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि गैल्वेनोमीटर इज ए हाईली सेंसिटिव डिवाइस, मतलब वो कुछ माइक्रो या मिली एम्पियर्स में करंट को डिटेक्ट करता है, उससे ज्यादा करंट आप उसमें से भेज ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं लगता कि पहली बार में जब किसी ने फैराडे को ये एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा कि ये करंट जनरेट होगा, वो कहने किसी को अगर उन्होंने बताया होगा कि मैं जानना चाहता हूं कि ये करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं, तो किसी ने उनको बोला कि बुद्धू तुम करंट प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर करंट प्रोड्यूस हो भी गई, मान लीजिए अगर तुम जो सोच रहे हो, तो ये मिली एम्पियर्स में और माइक्रो एम्पियर्स में करंट किस काम की? हाँ, इतनी कम करंट। बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि जैसा मैंने बताया शुरू में कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आज जनरेट होती है, आपके घर में जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके घरों में जनरेटर्स यूज करते हैं, एक्सेप्ट आजकल हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज करने लगे हैं जो सोलर एनर्जी और इन्वर्टर्स वगैरह है। लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का प्रिंसिपल फैराडे का ही है। यही एक्सपेरिमेंट है। तो कहीं एक छोटी सी चिंगारी थी जो आज एक बहुत बड़ी आग के फॉर्म में है, हम उसको यूज करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया कि इस कॉइल को यहां रखा, मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेट को रखा, कॉइल को मूव किया, एंड ही डिड इट नंबर ऑफ टाइम्स, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ नहीं रहा था। और उनको बड़ा मतलब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि क्यों नहीं हो रहा। उनको मतलब श्योर थे कि होना ही चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। और बहुत देर तक करने के बाद, बहुत बार करने के बाद जब ये नहीं हुआ, तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने गुस्से में आके उस अपैरेटस को ऐसे फेंक दिया कि बकवास है, कुछ नहीं हो रहा है, इतना किया, मेहनत नहीं हुआ। और जब फेंका उन्होंने, अचानक वो रिजल्ट मिल गया उनको। ऐसा क्या हो गया भाई, अचानक रिजल्ट कैसे आ गया? फिर ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने फेंका तो वो कॉइल जब बाहर फेंकी उन्होंने, तो वो मैग्नेट अचानक उस कॉइल के अंदर चला गया, रैपिडली उस कॉइल के अंदर चला गया। और जैसे ही वो रैपिडली कॉइल के अंदर गया, उनको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा। ही गॉट एन आइडिया कि क्यों नहीं आ रहा था डिफ्लेक्शन। और जब अब उन्होंने अपनी गलती को पकड़ लिया और दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, तो ही गॉट द एक्सपेरिमेंट, ही गॉट द रिजल्ट। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास देखिए सेटअप तो बहुत सिंपल सा है, अ सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड अ मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट केप्ट इन फ्रंट ऑफ। यहाँ बार मैग्नेट की जगह अभी आप देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कॉइल भी लगा सकते हैं, मैंने एक मैग्नेट दिखाया। And experiments procedure is very simple. Hold this coil stationary, okay, let it be static here, and keep this magnet a little away. Let this be the north pole and suddenly bring it near the coil. ठीक है, hold it, push it away, again do it, and then you may repeat it by bringing the south pole towards it and pulling the south pole away. ठीक है, third time you do it, magnet को यही hold करके रखिए, coil को लेकर आइए, ठीक है, कॉइल को स्टैटिक करिए, फिर कॉइल को दूर ले जाइए। मतलब दीज आर सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स यू कैन डू, एंड विद दीज एक्सपेरिमेंट्स व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फैराडे सक्सेसफुली, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऐसा करने के बाद क्या दिखा उन्हें, क्या मिला। सो सी आई हैव रिटन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन,
the coil is kept static, suppose, and the magnet was kept a little away. North pole of the magnet is facing towards the coil, and when he suddenly pushed this north pole of the magnet towards the coil, he saw a deflection. When north pole of the magnet is pushed towards the coil, a deflection is obtained in the galvanometer. Some direction, I'm not mentioning what is the direction, some direction the deflection was obtained. Okay, now second observation is he brought that magnet, north pole of the magnet, and when he brought it near that coil or maybe into the coil, there was a deflection, and now he held it stationary. यहाँ लाके रुक गए. Next observation में क्या देखा उन्होंने? When the magnet is held stationary near the coil, ये ले आए, जब ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन हुआ, लेकर आके रुक गए, यहाँ रुका हुआ है, coil भी रुका हुआ है. जब no movements was there, he saw that near the coil no deflection is obtained. अगर मैग्नेट और कॉइल स्टैटिक हो गए हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था. थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या किया, ये जो नॉर्थ पोल आप दूर से लाए थे, यहां रुके हुए हैं, नो डिफ्लेक्शन, अब सडनली उसको दूर ले गए. उसको जब दूर ले गए, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पुल्ड अवे, अगेन अ डिफ्लेक्शन, फिर डिफ्लेक्शन हुआ. लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन हुआ, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में पहले आया था, जब लाने पर डिफ्लेक्शन हुआ था, जिस डायरेक्शन में मान लीजिए लेफ्ट हुआ था, तो दूर ले जाने में डिफ्लेक्शन राइट हुआ. डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदलना क्या बता रहा था कि इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ. अगर पहले ए से बी हुआ था तो अब बी से करंट फ्लो हुआ. ठीक है, वो किस तरह फ्लो करेगा, इस सारी बातें हम लोग अभी आगे जानने वाले हैं. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड रैपिडली, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था. एक्चुअली यही वो गलती कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट में, शायद जो बाद में सक्सेसफुल हो गए, कि जब ये मैग्नेट को बहुत तेजी से लेकर आए तो ये डिफ्लेक्शन और ज्यादा हुआ. मतलब पहले जो डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल को लाने से हुआ, जो मैग्नेट धीरे से लाए थे, तो मे बी 5 और 10 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन हुआ. लेकिन जब वो बहुत तेजी से लेकर आए तो मे बी वो डिफ्लेक्शन 15 to 20 या 30 डिविजन्स का हुआ. मतलब डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड था वो तब ज्यादा हो रहा था जब वो मैग्नेट को फास्टर मूव कर रहे थे. मोर फास्टर, द मोर रैपिडली द मैग्नेट इज मूव्ड, मे बी नियर द coil or maybe away from the coil, the magnitude of the deflection was more. Now what was the magnitude of deflection representing? More deflection is produced when more current is produced. More current will be produced when more potential difference will be produced between A and B. तो ये ऑब्जर्वेशंस में, अब सारी बातें अभी हम रिजल्ट्स में, मतलब कंक्लूजन्स में लिखेंगे कि यहाँ पे जो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं गैल्वेनोमीटर नहीं लगाऊं तो गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो नहीं कर सकता. मैग्नेट को लाइए, दूर ले जाइए, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. लेकिन ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तब भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस विच इज प्रोड्यूस बिटवीन ए एंड बी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन वाज कॉल्ड एज ईएमएफ. यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, है ना. अगर मैंने गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया हुआ है और मैग्नेट को लाता था, दूर ले जाता था, जो आप डिफ्लेक्शन होता हुआ देख रहे थे, अब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा. लेकिन क्या ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा? प्रोड्यूस हो रहा होगा. वो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन ए एंड बी when no current is being drawn from by connecting a galvanometer or any other device between A and B, when the magnets were either moved towards or magnets were moved away, then that potential difference is called as EMF, है ना. And that is why that potential difference in this experiment is known as an induced EMF. इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहां पर हमारे पास देखिए एज सच कोई जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बैटरी है, जनरेटर्स है, ये सब होते हैं, इनके इंड्यूस्ड, इनके ईएमएफ बोलते थे. यहां तो कोई सेल या बैटरी है ही नहीं, फिर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. एंड वो जब कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया गया इंड्यूस्ड ईएमएफ. मतलब इस कॉइल में, ये कॉइल बन गया सोर्स, ये कॉइल एक सोर्स बना. कब बना? जब मैं मैग्नेट को पास लाया. मैग्नेट को पास लाने से ऐसा क्या हुआ इस कॉइल में कि उसमें करंट जनरेट होने लगी, ईएमएफ जनरेट होने लगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना. इस कॉइल में जो करंट कैरी करने वाले जो चार्जेस है, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. उनको हमने एनर्जाइज कर दिया. मैग्नेट को उसको पास लाने से या दूर ले जाने से उन इलेक्ट्रॉन्स में को हमने एनर्जाइज कर दिया. मतलब दे हैड एन एनर्जी नाउ दैट दे कैन फ्लो थ्रू अ सर्किट. इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो कर सकते हैं? व्हेन दे हैव एनर्जी. तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता था? हमारे कन्वेंशनल सर्किट्स में वो एनर्जी एक सोर्स, एक सेल प्रोवाइड करता था. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी किसने प्रोवाइड कर दी? इस मैग्नेट के पास या दूर लाने से. ये मैग्नेट के पास दूर लाने से क्या ऐसा हो गया कि वो एनर्जाइज हो गया? वी अंडरस्टैंड कि एक मैग्नेट के आसपास तो इस मैग्नेटिक फील्ड होती है, बस हमने ये अभी तक पढ़ा है, ये समझा है. मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर रहा है, इसका मतलब, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हुए और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ.
इस फिनोमेना का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ because of magnetic field and electricity is produced, that is why this phenomena was named as an electromagnetic induction। ठीक है, तो ये शब्द अब मेरे ख्याल से जस्टिफाइड लग रहा होगा क्या, क्यों नाम रखा गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्यों नाम रखा गया। अच्छा, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं विद साउथ पोल, ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल से मैंने कहा करना है तो आप सिर्फ कहेंगे कि नॉर्थ पोल से ही होता होगा, नहीं भाई। अगर आप इसको उल्टा करके यहां आप साउथ पोल रखें, यहां नॉर्थ पोल रखें, साउथ पोल को ला रहे हैं, साउथ पोल को दूर करते हैं, तो यही सारे ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 4 फिर से मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन जो डिफ्लेक्शन डायरेक्शन विद नॉर्थ पोल मिलता था साउथ पोल से, वो सारे डिफ्लेक्शन उनके उल्टे मिलेंगे। मतलब नॉर्थ को पास लाने से डिफ्लेक्शन लेफ्ट हुआ था, तो साउथ को पास लाने से डिफ्लेक्शन राइट होगा। ठीक है, सारे रिजल्ट्स उल्टे होंगे बस। और एक बार और अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा इस तरह से करें कि मैग्नेट को होल्ड करके रखें, वहीं इसको एक जगह रख दीजिए, कॉइल को पास लाइए, कॉइल को दूर ले जाइए। ठीक है, मतलब मूविंग द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट और मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, दे आर मूव्ड रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनको मूव किया जाए। जब भी ऐसा किया जा रहा था, इंड्यूस्ड करंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ्स प्रोड्यूस हो रही थी, पॉइंट्स ए एंड बी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम रखा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई सपोज वर्ड इंड्यूस्ड क्यों कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई सेल या बैटरी की मदद से ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो रहा है। इस क्वाइल में ये मैग्नेटिक फील्ड ये पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस कर रहा है, इंजेक्ट नहीं कर रहा। आपने सुना इंजेक्शन लगता है ना आपको, इंजेक्शन के लिए क्या किया जाता है, हमारे शरीर में एक पंक्चर किया जाता है, उसके अंदर से फिर दवाई आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहां इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, ये छू भी नहीं रहा उसको, दूर से ही इसके अंदर करंट जनरेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा जा रहा है इंडक्शन। लाइक आई एम ट्राइंग टू इंड्यूस, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट स्टिल व्हाट आई एम स्पीकिंग यू आर लिसनिंग, देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड योर ब्रेन, so I am inducing something inside your brains, so that is called as induction. So here the magnetic field was inducing the flow of electrons through that coil, as a result of which points A and B were having a potential difference, and that potential difference produced was called as an induced EMF, and this phenomena is known as electromagnetic induction. So this was the experiment done by Faraday. अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करें, इन प्लेस ऑफ ए मैग्नेट कोई मूवमेंट्स भी ना करें, यहां पर हम एक और सोलेनॉइड रख दें, ऐसा वन मोर सोलेनॉइड, और उस सोलेनॉइड में एक बैटरी लगाएं और एक की लगा दें। ठीक है, एक की लगा दी। अब देखिए, आपने पढ़ा था कि जब मैं एक सोलेनॉइड से करंट पास करता हूं तो वो सोलेनॉइड एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, और अगर करंट को मैं सडनली इंक्रीज करूं, और करंट अगर जब इसमें से मैं पास करता था, इसमें से करंट आई पास करता था, यू रिमेंबर, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड वाज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, n था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस कॉइल में, एंड I इज द करंट। करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड, नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब अगर अभी स्विच ऑफ है, करंट 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो करंट इस कॉइल में से करंट मान लीजिए 5 एम्पियर फ्लो करती है, तो 5 एम्पियर ऐसा तो नहीं है ना स्विच करते ही 5 एम्पियर होती है। स्विच ऑफ था तो करंट कितनी थी, 0। स्विच ऑन करने के बाद 5 होती है, मतलब वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे होती है, मतलब करंट 0 से बढ़ते हुए 5 होती है। जब 0 से बढ़ते हुए 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो 1 एम्पियर होगी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड, 2 एम्पियर होगी तो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई। तो मतलब जैसे ही मैं करंट को ऑन करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ती है, इट इज सेम एज लाइक कि मैग्नेट को पास लाया जा रहा है। कि मैग्नेट दूर होता है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, क्योंकि मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती थी, ऐसी होती थी ना, कि दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो मैग्नेट को पास लाने से क्या हो रहा था कि मैग्नेट दूर था तो यहां मैग्नेटिक फील्ड वीक थी, पास लाया तो यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई। जैसे मैग्नेट को पास लाने का मतलब था कॉइल को वीक मैग्नेटिक से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाना। ठीक है, तो वैसा ही अगर मैं यहां पर बिना किसी मूवमेंट के एक कॉइल को रखकर सिर्फ करंट को ऑन करता हूं, करंट ऑफ तो मैग्नेटिक फील्ड 0, करंट ऑन तो मैग्नेटिक फील्ड सडनली बढ़ गई। लेकिन सडनली बढ़ने में उसको 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ना पड़ रहा है ना करंट को, तो करंट बढ़ती थी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती थी। तो यहां पर भी देखा गया कि जब मैं स्विच ऑन करता हूं तो यहां डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। स्विच को ऑन करके रख दिया,
करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट हो गया करंट, नो डिफ्लेक्शन। स्विच को ऑफ किया फिर डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन रिवर्स हुआ। मतलब स्विच को ऑन ऑफ करो, डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट होता रहेगा, लेकिन स्विच को ऑन करके रखे रहो, नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर। तो वही सारी ऑब्जर्वेशंस फिर मिल रही है। मतलब दिस सोलेनॉइड विथ अ करंट इन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और जब हम उस करंट को बदलते हैं, करंट को इंक्रीज डिक्रीज करते बाय स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ, तो यहां पर हमें फिर वही इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाई पड़ती है। यहां करंट फ्लो होता हुआ दिखाई पड़ता है अगर मैं गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देता हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे फैराडे के। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकाला, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे। फैराडे ने क्या सोचा कि ये सब चीजें, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो जनरेट हो रहा था, मैं उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो उसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता था अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते थे, तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, कनेक्टेड है, क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट, कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में सिर्फ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बट इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी। तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही थी वो कितनी हो रही थी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रही थी उसमें कब कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और कब कौन सा टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा था। मतलब करंट ऐसे फ्लो करने वाली है कब, करंट ऐसे फ्लो करने वाली है कब। ये सारी चीजें हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में, कंक्लूजन्स में लिखा है, एंड उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेट अस नाउ नेक्स्ट डिस्कस व्हाट आर द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So these are the laws. So these laws are just based on those observations जो भी हम लोगों ने देखे। जो आपके फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस थे उसमें मैंने देखिए क्या बताया था कि जब भी हम एक मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे थे, मैग्नेट को पास लाना मतलब क्या हो रहा था कि एक सोलेनॉइड थी, एक कॉइल के पास, ये कॉइल था, सॉरी दिस वाज द कॉइल, है ना, और इसके कहीं दूर मैग्नेट रखा था। किसी मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं, ऐसा 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 ऐसा, ऐसी लाइंस है। कैन यू सी ओनली फ्यू लाइंस आर पासिंग थ्रू। सोचो कि ये मैग्नेट जब पास पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, जब मैं इसको मूव करके यहां लाऊंगा, तो अब यही लाइंस दोबारा ड्रॉ करो तो क्या होगा, मे बी ऑल लाइंस विल बी पासिंग थ्रू द सेम कॉइल। मतलब ये हुआ कि जब मैं मैग्नेट को पास ला रहा था या पास से दूर ले जा रहा था, तो इस कॉइल के थ्रू इसकी जो लाइंस थी जो इसके थ्रू पास कर रही थी, और अभी हमने एक टर्म डिफाइन किया था जिसको हम कहते थे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेट के पास या दूर ले जाने से इस कॉइल के थ्रू जो उसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं, फैराडे ने सोचा कि यही तो वो एक चीज है जो बदल रही है। मैग्नेट को पास लाने से, दूर लाने से, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रांग और वीक होने की वजह से इसके थ्रू जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस का नंबर या तो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका कारण उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का कारण होना चाहिए चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही हैज स्टेटेड इन हिज लॉ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए कंडक्टर व्हेनेवर इट इज लिंक्ड विथ ए चेंजिंग, नॉट ओनली दैट इट इज लिंक्ड विथ ए फ्लक्स, इट इज लिंक्ड विथ ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि देखिए हमने एक ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में ये लिखा था कि व्हेन दैट मैग्नेट वाज ब्रॉट नियर द कॉइल एंड इट वाज हेल्ड स्टेशनरी, यहां लाके रुक गए हम, जब हम यहां रुक गए, मैग्नेट को यहां लाके रुक गए हैं, तो भी तो मैग्नेटिक लाइंस है ना, मैग्नेटिक लाइंस उस कॉइल के थ्रू पास कर रही हैं, मतलब फ्लक्स तो है, फ्लक्स है लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहता है जब तक वो फ्लक्स या तो बढ़ रहा था मैग्नेट के पास आने से या घट रहा था मैग्नेट के दूर ले जाने से। जब मैग्नेट को पास रख देने से या कहीं भी रख देने से फ्लक्स तो था लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था, तो हमने देखा था ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में कि करंट फ्लो नहीं हो रहा था। करंट फ्लो नहीं होना मतलब नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसलिए उन्होंने उस पूरे स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए कंडक्टर व्हेनेवर इट इज लिंक्ड विद ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तक वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एंड इट लास्ट का मतलब कब तक वो सर्वाइव करता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इंड्यूस्ड करंट कब तक रहता है, इट लास्ट टिल दैट चेंज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस।
कि जैसे ही वो फ्लक्स चेंज होना रुका, फ्लक्स है मे बी, फ्लक्स ये नहीं कि फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स का चेंज होना जैसे रुका, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है। तो इसलिए फैराडे कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए चेंज इन फ्लक्स होना जरूरी है। फ्लक्स तो होना जरूरी है ही, बिना फ्लक्स के नहीं होगा, लेकिन उस फ्लक्स के अकेले होने से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, उस फ्लक्स का इंक्रीज या डिक्रीज होना जरूरी है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा और कब नहीं प्रोड्यूस होगा। दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्क्राइब किया है। मैग्नीट्यूड में क्या कहते हैं वो, द मैग्नीट्यूड, इसके लिए मैंने आपको फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए क्या बताया था। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये कहा था कि जब हमने उस मैग्नेट को रैपिडली मूव किया था, जब रैपिडली पास लाए थे या रैपिडली दूर ले गए थे, तो जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ था वो ज्यादा हुआ था। मैग्नीट्यूड ऑफ deflection is more means more current means more induced EMF. So this is what he has stated in his second law. The magnitude of induced EMF produced across a conductor is directly proportional to the rate of change of flux. देखिए मैं इसको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूं कि मतलब फ्लक्स का जो चेंज हुआ, मान लीजिए 50 वेबर्स का चेंज हुआ, 50 वेबर्स बढ़ गया, मतलब कहीं मैग्नेट को दूर रखने से इसके थ्रू जो जाने वाली लाइंस थी वो 100 थी और यहां पास ले जाने पर वो 150 हो गई। कितनी बढ़ गई? 50 बढ़ गई। मान लीजिए इस मैग्नेट को यहां से यहां तक लाने में हमने 0.1 सेकेंड का समय लगाया। कितने समय में ले आए हम उसको? 0.1 सेकेंड में लेकर आए। ठीक है, तो किस रेट से फ्लक्स चेंज हुआ? वी विल से 50 डिवाइडेड बाय 0.1 मींस 500 वेबर्स पर सेकेंड। इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। बट मान लीजिए इस मैग्नेट को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इस मैग्नेट को हटाते हैं, ये मैग्नेट की जगह एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लगाता हूं, मैं एक मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगाता हूं, और ये जब मैग्नेट स्ट्रांग था, ये दूर था, यहां जब दूर था तो इसके थ्रू जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस का नंबर था, अभी जब दूर था तो वो 200 लाइंस जा रही थी, नंबर ऑफ लाइंस वर 200, और जब ये मैग्नेट यहां पे पास पहुंच गया तो ये नंबर बढ़कर 400 हो गया। कितना बढ़ा? चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? इस बार चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? 200। ठीक है, लेकिन इसको मैं पास लाने में, इसको इस यहां से यहां तक लाने में मान लीजिए 2 सेकंड का समय लगाता हूं, 2 सेकंड्स में यहां तक लाता हूं, तो चेंज ऑफ फ्लक्स तो ज्यादा है। यहां पर 50 ही वेबर्स चेंज हुआ था, यहां पर वेबर्स कितने चेंज हुए? 200। यहां पर फ्लक्स चेंज ज्यादा है, यहां पर फ्लक्स चेंज कम है, लेकिन यहां पे मैंने उसको लाने में 2 सेकंड का समय लगाया, धीरे धीरे मैग्नेट को लाया 2 सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ? 100 वेबर्स पर सेकंड। तो क्या होता है कि इस केस में हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कम होगा। इवन दो फ्लक्स चेंज ज्यादा हुआ है लेकिन करंट कम प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम प्रोड्यूस हुआ। इवन दो फ्लक्स कम हुआ है लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। सो दैट इज व्हाट फैराडे सेज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना फ्लक्स हुआ चेंज, फ्लक्स कितनी रैपिडली चेंज हुआ, कम समय में, बहुत कम समय में, चाहे थोड़ा सा ही फ्लक्स चेंज हुआ लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ ज्यादा था। ज्यादा फ्लक्स चेंज हुआ लेकिन अगर ज्यादा समय लगा दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हो गया। तो टाइम शुड बी लेस, चेंज ऑफ फ्लक्स शुड बी मोर, ठीक है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी लार्ज। तो मोर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस बात को मैथमेटिकली फैराडे ने ऐसा लिखा कि मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट्स के मैं सिंबल्स में इसलिए लिखा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मोर मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डी फाई इज चेंज इन फ्लक्स इन ए टाइम इंटरवल ऑफ dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डी फाई अपॉन dt। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k अगर यूज किया तो इट इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन dt। रिमेंबर दैट दिस इज डी फाई मींस ऑलवेज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ऐसे ही करेंगे हम इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी ऑलवेज फाइनल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स चाहे ज्यादा हो, इनिशियल कम हो, या फाइनल फ्लक्स कम हो, इनिशियल ज्यादा हो, मतलब वो इंक्रीज, दो तरह की बातें होंगी। इसका मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स में दो तरह की चीजें होंगी, इंक्रीज इन फ्लक्स या डिक्रीज इन फ्लक्स। जब मैग्नेट को पास लाया था, नॉर्थ पोल को पास लाया था तो इंक्रीज इन फ्लक्स हुआ था, नॉर्थ पोल को दूर लेकर गया था, देयर वाज अ डिक्रीज इन फ्लक्स। ठीक है, एक में इंक्रीज इन फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो एक में डिक्रीज इन फ्लक्स होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बट हमें चाहिए चेंज, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड लिखा। वो डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय कि फ्लक्स चेंज कैसा हो रहा है। ठीक है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज
k टाइम्स एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जैसे आप जानते हैं जहां भी प्रोपोर्शनलिटी यूज होती है उसको इक्वेशन बनाने में हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो हम एक कांस्टेंट k को यहां पर 1 कैसे कर लेते हैं, देखिए इसको यूनिट कांस्टेंट कैसे चूज किया हमने, अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया कि अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ्स को वोल्ट्स में नापें और d5 अपॉन dt वेबर्स पर सेकेंड में नापे, तो वेबर हैज बीन सो डिफाइंड, ऐसा ही डिफाइन ही किया गया वेबर को कि 1 वेबर पर सेकेंड, 1 वेबर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। इफ द फ्लक्स चेंजेस थ्रू ए कॉइल इन 1 सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी 1 वोल्ट। तो अगर ऐसा है तो कांस्टेंट k विल बिकम 1, ठीक है, k विल बी 1, और उस केस में ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी E is equals to d phi upon dt. Magnitude of induced EMF will be d phi upon dt. ठीक है, so this is Faraday's law of electromagnetic induction. इसमें हमने दो बातें समझी, इसके इन दो लॉज में हमने दो बातें समझी। पहला लॉ मैंने जैसे कहा आपको बताया है, when will be the induced EMF produced and when will it not be produced. Second law is telling you what is the magnitude of induced EMF. तो फैराडे ने अपने इस लॉ, इन लॉज में ये दो बातें तो बताई। देयर वाज स्टिल वन प्रॉब्लम लेफ्ट कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो जो कॉइल के अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर ए और बी के बीच में कनेक्ट किया था, करंट कब ए से बी की थ्रू जाएगा, की तरफ जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और कब बी से ए की तरफ आएगा। नॉर्थ पोल को पास लाने में हुआ था या नॉर्थ पोल को दूर ले, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता करें, नॉट कैलकुलेट करें, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे उस डायरेक्शन को, उसके लिए हम एक थर्ड लॉ पढ़ेंगे। That is also called as third law of electromagnetic induction, but that was not given by Faraday. It is known as Lenz's law. तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं Lenz's law क्या है and how to use Lenz's law to find the directions of induced EMFs or induced currents. Okay?